جی آئیے ہم آج اس کلام کی جو ہم نے اپنا کلام کی بابت سیکھا کہ تم نے مفت پایا اور مفت دینا، یہ متی کی انجیل باب نمبر جو ہے ہم نے دیکھا 10، اس کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 9 جو پہلا میسج ہوا، جو پہلی قسط ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دوسری قسط میں آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں، لیکن میں دہرائے دیتا ہوں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنا پادری صاحب جو کلام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ کوئی دائیے کی کوئی ہدیہ نہ لیں، یا پھر ان کو کوئی بھی پٹرول کے پیسے جو ہے وہ نہ دیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی اور اشیاء، مطلب جیسے جوتی، کپڑا اور جو رینٹ ہے، ایسی چیزیں بالکل نہ دیں، ٹھیک ہے، چونکہ کلام جو ہے یسوع نے کہا ہے کہ تم نے مفت پایا مفت دینا۔ آئیے نیچے دیکھیں ذرا خدا کی کلام میں کیا لکھا ہے۔ اوپر تو لکھے نا کہ تم نے مفت پایا مفت دینا، تو آیت نمبر 9 میں لکھا ہے نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہ سونا، ٹھیک ہے جی، اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے، راستہ کے لیے نہ جولی لینا، نہ دو کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اوپر تو کہا کہ تم نے مفت پایا مفت دینا، اس مکاشفہ کو ہم سیکھ چکے ہیں، اس بھید کو، اس ریولیشن کو ہم سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کی کوئی چیز مفت نہیں ہے، یہاں تک کہ بائبل بھی مفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ساز لینے چلے جائیں تو جی 40,000 سے اوپر کے ساز مل رہے ہیں، وہ بھی مفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یاد رہے کہ یسوع نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جب تم منادی کرنے جاؤ گے نا، ٹھیک ہے، تو رستہ میں آپ نے نہ سونا لینا ہے، نہ اپنے کمر بند میں، ٹھیک ہے جی، لکھا ہے کہ اپنی کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی نہ پیسے، ٹھیک ہے، مطلب کہ کوئی چیز تم نے گھر سے لے کر نہیں نکلنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ لکھے نہ رستہ کے لیے نہ جولی لینا، نہ دو کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے لکھا ہے نہ جوتیاں نہ لاٹھی۔ اچھا، اب یہ سکھانے کی غرض سے کہا گیا، سکھانے کی غرض سے کہ کلیسیا جو ہے وہ سارا بندوبست آپ کا کرے گی۔ سارا کا سارا بندوبست کون کرے گا؟ کلیسیا کرے گی۔ اچھا جی، اب دیکھو لکھا نہ دو کرتے لینا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کپڑوں کا بھی بندوبست ہے نا، وہ کلیسیا کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو بھی نذرانے ہیں، ٹھیک ہے، عدیے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے خدا کے گھر سونا چاندی تک لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا کے بندہ جو نبی ہے، ٹھیک ہے، جو کائن ہے، اس کے آگے لا کر رکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یاد رہے کہ یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ نہ آپ نے جوتی لینی ہے، جوتیاں لکھا ہوا ہے، جمع کی صورت ہے، یہ جوتیاں تک نہیں لینی آپ نے۔ یہ بھی آپ کو کون دے گا؟ ہاں، یہ دے یقی اور ہدیے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو گفٹ دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان سب سے جو ہے ایک چرواہے کی، ٹھیک ہے، ضرورت پوری ہوگی۔ اور اسی لیے پھر یسوع نے کہہ دیا کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ دیکھیں الیکس بھائی، آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ بتائیں ذرا، بلندی میں بتائیں۔ لیسکو میں گورنمنٹ۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو آپ ظاہری بات ہے جہاں سے جاب کر رہے ہیں، جہاں پر آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں، آپ اپنا وقت گزارتے ہیں، تو وہیں سے سیلری ملتی ہے نا، وہیں سے آپ کی مزدوری آپ کو ملتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو جو چرواہا ہے، جب وہ صبح شام منادی کر رہا ہے، تو جہاں پہ جس کھیت میں وہ کام کر رہا ہے، تو اس نے کہاں سے کھانا ہے؟ بتائیں مجھے۔ ادھر سے ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تو خدا نے جو ہے دائیہ کی اور ہدیہ لاگو کیا کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اچھا، اب میں آپ کے بیچ میں ایک ایسا حوالہ رکھنا چاہتا ہوں، یاد رہے کہ جو کلیسیا اپنے چرواہے کو، اپنے استاد کو سپورٹ نہیں نہ کرتی، ٹھیک ہے، اس چرواہے کا حال کیا ہوتا ہے؟ آئیے یہ بھی خدا کے کلام میں دیکھ لیتے ہیں۔ نہمیہ کے دور میں، ٹھیک ہے جی، کیا ہوا؟ چونکہ یہاں پہ خدا کا کلام کہتا ہے
नहमिया बाब नंबर 13 आयत नंबर 10 लिखा, फिर मुझे मालूम हुआ कि लावियों के हिस्से उनको नहीं दिए गए। ठीक है जी, इसलिए खिदमत गुजार लावी और गाने वाले अपने अपने खेत को भाग गए। ठीक है जी, अब देखें यहां पे गौर करें, उस वक्त लावी, ठीक है जी, और जो हैकल के लिए चुने गए, ठीक है, और फिर गाने बजाने वाले, जब इनको इनका हक नहीं ना मिला, जिसे कहते हैं दे यकी मिली, हदिया नहीं मिला। दे यकी, खास तौर में आपको बता दूं कि दे यकी से पादरियों की तनख्वाह बनती है। किसे? अच्छा, और जो हदिया है उससे हैकल जो है उसके काम होते हैं। तो जब उनको लोगों ने दे यकी देना बंद कर दी, ठीक है जी, उनको सपोर्ट करना बंद कर दी, तो ये जो लावी है ना, ठीक है जी, खिदमत गुजार लावी जो हैं और गाने वाले अपने अपने खेत को भागे, मतलब कि उन्होंने ना खिदमत छोड़ के ना काम करना शुरू कर दिया। क्या लिखा है? काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जाहिर बात है जब कलीसिया उनकी मदद नहीं करेगी, ठीक है, उनको सपोर्ट नहीं करेगी, दया किए और हदिये नहीं देगी, नहीं लाकर रखेगी, ठीक है, पास्टर के आगे, चरवाहे के आगे, अपने उस्ताद के आगे, तो फिर जो है जो आज के लावी हैं, आज के गाने बजाने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, खेतों से मुराद कि कोई रिक्शा चलाना शुरू हो जाता है, कोई जो है अपना मजदूरी करना शुरू हो जाता है, कोई जॉब पे लग जाता है। तो इस सूरत में खुदा के घर की जो खिदमत है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, खुदा का काम फिर कौन करेगा अगर आज के लावी, आज के चरवाहे, आज के उस्ताद अगर चर्च में ना होंगे, आपके पास ना आएंगे, गाने बजाने वाले अगर इबादत में ना होंगे, तो कैसे इबादत कंप्लीट होगी? और यकीन जाने, अफसोस से मैं ये बात करने लगा हूं, याद रहे कि जब चरवाहों उस्तादों को तो चलो कुछ ना कुछ मिल जाता है, जब गाने बजाने वालों को नहीं मिलता तो वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जी पादरी साहब को तो हदिया मिल जाता है, दया की मिल जाती है, लेकिन हमारी बारी जब आती है तो ये हमें हंस कर दिखा देते हैं और कहते हैं कि खुदा तुझे बरकत दे। ठीक है, तो मैं आज आपको ये भी कहना चाहता हूं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है जी, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सारे जो मुझे देख रहे हैं, जो कलाम सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो चरवाहे हैं वो गाने बजाने वालों का भी ख्याल करें। ठीक है, अपनी जेबें खाली ना भरे, अपनी प्रॉपर्टी ना बनाएं, अपने बैंक बैलेंस ना बनाएं, ठीक है जी, अपनी गाड़ियां ना बनाएं, इनका भी ख्याल करें, चूंकि ये भी आपके साथ 4-4 5-5 घंटे रहते हैं। ठीक है, आधा आधा दिन रहते हैं, फुल टाइम रहते हैं, तो इनके भी हिस्से बनते हैं। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जिस तौर से हमें इबादत करनी चाहिए, अगर हमने उस तौर से ना की तो खुदा का अबर, उसकी हजूरी किस तरह आएगी, किस तरह खुदा उतरेगा, अपना तख्त लगाएगा, किस तरह वहां पर मौजज़े होंगे। तो इसलिए याद रहे कि जिस चर्च के अंदर गाने बजाने वाले नहीं है ना, उसे तख्त भी नहीं लगता जाए। ठीक है, और यकीन जाने कि इस वक्त बथेरे ऐसे गाने बजाने वाले हैं जो गीतों को छोड़कर गाना गाने लग पड़े हुए हैं। ठीक है, होटलों में चले गए हुए हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने पकड़ लिए हैं, और कई तो जो है कवालियां जो हैं वो गाना शुरू हो गए हैं, तबला बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले कवालियां पर बजाना शुरू हो गए गीतों को छोड़कर। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रहे, चूंकि जब उनको उनका हक नहीं मिलेगा, ठीक है, उनकी मजदूरी उनको नहीं मिलेगी, तो फिर वो जाहिर बात है गीतों को छोड़कर, चर्च को छोड़कर दरबारों पर जाएंगे, उधर जाकर कवालियों पर बजाएंगे ये। तो इसलिए मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरी इल्तमास है जी, खासतौर पास्टरों से, कि थोड़ा खा लो, ठीक है, थोड़ा हिस्सा ले लो, लेकिन इनको भी इसके अंदर शामिल करो। 200-400 रुपये आज कुछ नहीं करता। तो अगर कोई मेरा भाई गाने बजाने वाला, कलाम सुनाने वाला अगर कोई डिमांड करता है ना, तो उसकी वजह यह है कि वो कलाम को तो मुफ्त दे रहा है,
गाने बजाना, उसका जो अपना गीत गाना बजाना जो है वो भी मुफ्त दे रहा है, लेकिन जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पैसों से पूरी होनी है। तो अगर उसकी ज़रूरत पूरी ना हुई तो जाहिर बात है वो तो फिर दरबारों पर जाकर ही बजाए गाएगा ना, कवालियों के ऊपर, या फिर वो किसी होटल में नौकरी कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पे साफ लिखा है। अच्छा, अब हुआ क्या, नेहमिया ने क्या किया, आइए जरा देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। लिखा है, तब मैंने हाकिमों से झगड़ कर कहा कि खुदा का घर क्यों छोड़ दिया गया। ठीक है, वो सारे छोड़ गए, वहां पे जितने लावी थे और जितने अपना गाने बजाने सारे छोड़ के चर्च खाली हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें जरा क्या लिखा है। तब और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर मुकर्रर किया, यानी नेहमिया ने लोगों को समझाया कि भाई इनके दायकी, इनकी हदिया इनको दो ताकि ये अपनी खिदमत पर बहाल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो इसलिए याद रहे कि आज भी बथेरे बहुत सारे खादम जो हैं, ठीक है, जब उनको उनके हिस्से नहीं मिलते, ठीक है जी, तो उनको दायकी हदिया नहीं मिलता तो वो छोड़कर खिदमत कामों में लग जाते हैं, और इस सूरत में ठीक है उनकी रूहें बुझ जाती हैं। और सारी बात है, अगर चरवाहा ही जो है ठीक है उसकी रूह बुझ जाए तो कलीसिया का क्या हाल होगा फिर। ठीक है, तो फिर कलीसिया का क्या हाल होगा। तो इसलिए याद रहे, इन्हें सपोर्ट करें। लिखा है आगे सुने, मुकर्रर किया, तब सब अहले यहूदा ने अनाज और मैं और तेल का 10वां हिस्सा खजानों में दाखिल किया। आगे दोबारा, ठीक है, 10वां हिस्सा फिर से शुरू। नेहमिया ने लोगों को तैयार किया हाकिमों से झगड़ के। ठीक है, आज यकीन करो कोई हदिये दायकी की बात कर लेना, कहते ए पादरी नूं ते अपनी पै गई। ठीक है जी, क्या इस पादरी को अपनी पड़ गई है। ठीक है जी, और आगे क्या लिखा है, और मैंने सलमिया काहिन और सदूक फक्की और लावियों में से फिदाया को खजानों के खजांची मुकर्रर किया, और हनान बिन जकूर बिन, और आगे लिखा है मतनिया उनके साथ था, क्योंकि वो दयानतदार माने जाते थे और अपने भाइयों में बांट देना उनका काम था। तो इसलिए जो आप में कोई दयानतदार है उसको खजांची बनाएं, ठीक है, और उसके सपुर्द जो है ये काम करें, ताकि वो दयानतदारी से काम करे और क्या करे, जो जो दायकी है, ठीक है, और जो बनती है लावियों की और फिर गाने बजाने वालों की, उनको जो है वो दें। ठीक है, जो है ना खुदा के काम को बिगाड़े नहीं। ठीक है, खुदा काम करना चाहता है। ठीक है, और दुनिया का कोई काम पैसे के बगैर नहीं है। तो इसलिए इनको बुरा ना समझे। मैं बड़ा सुनता हूँ, ओ जी फलाना गान वाला जी वो 30,000 रुपया ले रहा है, फलाना गान वाला 50,000 रुपया ले रहा है। ठीक है, तो वो क्यों मांग रहा है? वो गाने बजाने के लिए नहीं मांग रहा। ठीक है, अब जाहिर बात है अगर वो पिकअप कराता है तो उसके लिए ठीक है, वो पिकअप वाला जो है वो कहता है जी मैं 5,000 लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जी साउंड वाला है, साउंड वाला कहता है जी कि मैं 10,000 लूँगा जी, चूँकि मैंने सारा दिन वहाँ पर लगाना है। उसके बाद जी अपना तबले वाला, बाजे वाला, कीबोर्ड वाला, ये सारे कह रहे हैं, कोई कह रहा है मैं 3,000 लूँगा, कोई कहता है मैं 5 लूँगा, कोई कहता है मैं 2,000 रुपया लूँगा। तो इस तरह करते करते वो बन जाता है 30, 40, 50,000 रुपया। तो जाहिर बात है जिस ने सामने आना है तो वो अब फटे कपड़े या पुराने कपड़े तो नहीं पहन कर आएगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक कोट मैंने देखा बागबानपुरा बाजार में, मुझे बड़ा पसंद है, सिर्फ खाली कोट था। तो मैंने उसकी कीमत पूछी तो उसने मुझे बताया, कहता है इसकी कीमत 5,000 रुपया है। ठीक है, तो खाली कोट की कीमत 5,000 रुपया। और अगर देखें एक चरवाहा या एक गाने बजाने वाला है, जब वो ड्रेसिंग करता है तो कम से कम कोई 5-7 हज़ार रुपया या 10,000 रुपया तो उसके अपने ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी ज़रूरतें हैं। तो इसलिए कोई इसको बुरा ना समझे। दीन इस्लाम के अंदर इन चीज़ों को अच्छा समझा जाता है। वो अपने नात ख्वाह से या कवालों से पूछ लेते हैं कि आप कितने पैसे लोगे आने के। तो वो इसलिए नहीं कहते कि वो मतलब गाने बजाने को खरीद रहे हैं। वो जानते हैं कि हम जो हैं काम मुफ्त ही करवा रहे इनसे, लेकिन इनकी जो ज़रूरतें हैं ठीक है वो लाजम है। तो इसलिए याद रहे कि आप इसको बुरा ना समझा करें।
ठीक है, आप बड़ा ही बुरा समझते हैं कि जी एक ही मुंह मांगते ने जी 30,000 दे दो 50,000 दे दो। ठीक है, कोई भी बात करने से पहले आप ना खुदा से, कलाम से और चरवाहा से पूछें कि कलाम में इनकी बाबत क्या लिखा है, कैसे इनको लेकर चलना है। ठीक है, ले जी आखिरी हवाला मैं रख के इसको वाइंड अप करने लगा हूँ तिमोथियस के खात्मे से भी, ताकि आपको पता लग जाए। लिखा है पहला तिमोथियस बाब नंबर 5 इसकी आयत नंबर 17 से पढ़ूंगा। लिखा है जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं, क्योंकि किताब मुकद्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। ठीक है, तो भाई एलेक्स, ठीक है जी, बेटी दुआ दाइम बेटे, अब पता लगा? ठीक है, समझ आई जी? बुलंद आवाज में मुझे बताए, समझ आई? हाँ जी, ठीक है, पता लगा जी, आज? अब पता लग गया कि क्यों ये आज के गाने बजाने वाले या कलाम सुनाने वाले डिमांड करते हैं, पैसे मांगते हैं। वो कलाम के लिए नहीं मांग रहे, किसके लिए मांग रहे हैं? कलाम के लिए मांग रहे हैं, नहीं, जरूरतों के लिए, हाँ, जुड़ी हुई जरूरत। शाबाश शाबाश, अब समझ आ गई ना? ठीक है, तो कोई भी अगर बात करे तो उसका मुंह बंद करे, उसे बताएं ए जी टाई है ना मुफ्त नहीं आती, ए जी शर्ट है मुफ्त नहीं आती, ए जो कोट है मुफ्त नहीं आता। ठीक है, वो जो पेट्रोल जिसको कहते हैं, ठीक है, जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो मुफ्त देते नहीं है। ठीक है, बाइक जो है वो मुफ्त नहीं मिलती। ठीक है जी, तो इसलिए याद रहे कि हम अपने ना सोचों को बदलें। ठीक है, दीन इस्लाम इसमें जब वो पैसे की डिमांड करते हैं तो वो उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन अब में इसको बहुत बुरा समझा जाता है। तो आइंदा से कोई भी इसको बुरा ना समझे। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही कलाम काफ़ी है। आप समझ गए होंगे कि आज का मुकाशफा क्या है। और मैं आपसे आखिर में एक बात करने लगा हूँ, याद रहे कि जिसको अच्छा लगा है वो ज़रूर अपने कमेंट्स में जो है लिखे, और अगर अभी भी उसको समझ नहीं आई तो अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर वो चाहता है कि और भी इसके हवाला से हमें तालीम मिले तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में जो अपने ख्याल का इज़हार कीजिएगा, और ये कलाम दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। अभिषेक साइमन बिशारत के नाम से ये चैनल चल रहा है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस कमेंट्स भी जो है ना इस पर आप ज़रूर अपने दे लिखें, ताकि हमें पता लगे कि आपको मूवी कैसी लगी, कलाम कैसा लगा। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।